wonderful learners, how are you all? I hope you all are doing good and keeping a good health too. So, ready to start a new chapter from your course book, Saral Hindi Pathmala Class 6 with your Hindi teacher Aprajita? Yes, here we start with chapter number 8 and this is a poem, children, Khatte Angur. Grapes are sour. The sweet grapes are also there. You must be eating the grapes. Everybody likes grapes. Sweet grapes and sour grapes. So, we'll read about these Khatte Angur in this poem. एक लोमड़ी खोज रही थी जंगल में कुछ खाने को, दिख पड़ा जब अंगूरों का गुच्छा लपकी पाने को. One vixen, the female of fox is known as vixen. So one vixen was looking for food in the jungle, and when she saw a bunch of grapes, she just jumped to get that bunch of grapes. ऊंचाई पर था वह गुच्छा, दाने थे रसदार बड़े, लगी सोचने अपने मन में कैसे ऊंची डाल चढ़े. Now that bunch of grapes was on a great height, but the grains were very juicy. They were looking very juicy. And she started thinking, that vixen started thinking that how to reach that high branch. नहीं डाल पर चढ़ सकती थी, खड़ी हुई दो टांगों पर, पहुंच न पाई ऊपर उचकी, अपने थूथन ऊपर कर. Now, she was not able to climb the branch. She stood on her two legs, then also she was not able to reach that branch. And again she tried out putting her face up, but she could not reach that. बार बार वह ऊपर उछली, बार बार नीचे गिरकर, लेकिन अंगूरों का गुच्छा रह जाता था बित्ते भर. Again and again she tried, she jumped and jumped, 100 times she jumped to reach that bunch of grapes, but again and again she fell down and that bunch of grapes was out of her reach. Look, her mouth is watering because she is seeing those juicy grapes. She wants to reach that, she wants to take that bunch of grapes, but she is not able to. 100 कोशिश करने पर भी जब गुच्छा रहा दूर का दूर, अपनी हार छिपाने को वह बोली खट्टे हैं अंगूर. Now, after 100 times of her trials to reach that bunch of grapes, when she was not able to reach them, then to conceal her failure, because it was her failure, she was not able to reach that bunch, and to conceal her failures, what she said that the grapes are sour. I don't want to eat them because they are sour. When the grapes are sour, you don't like them, no? The sweet grapes are liked by everybody. So to conceal her, to hide her failure, she said that the grapes are sour. And this poem has been written by Harivansh Rai Bachchan. Okay, children? Now, what did you learn? कभी कभी हमारे अथक प्रयास भी सफल नहीं हो पाते हैं. Now, sometimes, children, in our lives also, in spite of tireless efforts, we are not able to succeed. Sometimes our tireless efforts do not bear fruits. Okay? Now, the word meanings: lomdi, vixen, female fox, as I told you. Khoj karna, look for. Jungle, forest. Rasdar, juicy. Dal, branch. Thutan, mouth. Now, the exercise here. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. लोमड़ी जंगल में क्या खोज रही थी? लोमड़ी जंगल में, what was she searching for? The vixen was searching for the food, खाना. लोमड़ी अंगूर के गुच्छे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? Why was that vixen not able to reach that bunch of grapes? Because she, in spite of her tireless efforts,
वो अंगूर के गुच्छे तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी, वह उस डाली पर नहीं, अंगूर की डाली पर नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए उसे वो अंगूर के गुच्छे नहीं मिले। लोमड़ी ने अंत में क्या कहा? What did that vixen said at the end when she was not able to get the bunch of grapes? She said, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। The grapes are sour, खट्टे हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। लोमड़ी को दिखाई दिया, What she saw? अंगूरों का गुच्छा, केले का गुच्छा, संतरों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, द बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर कैसे थे? हाउ वर द ग्रेप्स? सूखे, रसदार, मजेदार। रसदार, दे वर फुल ऑफ जूसी ग्रेन्स वर देयर। अंत में लोमड़ी ने अंगूरों को कैसा बताया? एट द लास्ट व्हाट डिड द विक्सन सेड टू दोस ग्रेप्स? बहुत मीठा, ताज़ा, खट्टा। शी सेड दैट द ग्रेप्स आर सार। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट्स। लोमड़ी गांव में कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। गांव में? नो, शी वॉज लुकिंग फॉर फूड इन द जंगल, सो दिस इज रॉन्ग, क्रॉस। लोमड़ी ने अंगूरों का गुच्छा देखा, यस दिस इज करेक्ट। लोमड़ी डाल पर चढ़ गई, वॉज शी एबल टू क्लाइंब द ब्रांच? नो, फॉल्स, क्रॉस। लोमड़ी बार बार गिर जाती थी। द विक्सन वॉज अगेन एंड अगेन शी फेल डाउन, यस दिस इज करेक्ट। लोमड़ी अंगूरों तक न पहुंच सकी। द विक्सन वॉज नॉट एबल टू रीच द bunch of grapes, yes this is correct. Now children, next निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अंगूरों का गुच्छा देखकर लोमड़ी ने क्या किया? अंगूरों का गुच्छा देखकर लोमड़ी कूदने लगी। लोमड़ी, दैट विक्सन स्टार्टेड जंपिंग व्हेन शी सॉ द bunch of grapes। लोमड़ी क्या करने लगी? कूदने लगी, उस गुच्छे को तोड़ने के लिए कूदने लगी। गुच्छा ऊंचाई पर लगा होने के कारण लोमड़ी ने क्या सोचा? गुच्छा ऊंचाई पर लगा होने के कारण लोमड़ी ने सोचा कि वो कूदकर, बार बार कूदकर उस गुच्छे तक पहुंच सकती है। बार बार उछलने पर भी गुच्छा पहुंच से कितने दूर रह जाता था? बित्ते भर दूर रह जाता था। बार बार उछलने पर भी दैट bunch of grapes, it used to by a few distance, the few distance she was not able, by a few distance she was not able to reach the bunch of grapes, bitte bhar। So the answer here is bitte bhar, bitte bhar। Now the language section, दो बार शब्दों का प्रयोग करने पर शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। A special meaning is formed when the same words are used simultaneously, such as बार बार। One word is used twice। बार बार का विशेष अर्थ है बहुत बार या अनेक बार। बार बार means many times, okay? खा खाकर का विशेष अर्थ, what is the meaning of this खा खाकर? बहुत खाना या अनेक बार खाना। It means that huge amount of food or again and again eating the food। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के विशेष अर्थ का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। In the same way, use the special meaning of the words given below and make sentences। बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा means very huge, very huge। बड़ा बड़ा मतलब बहुत बड़ा। जब राम छत पर चढ़ा तो उसे सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। सोच सोच, मेरी माँ सोच सोच कर परेशान थी कि मैं घर क्यों नहीं लौटा। सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस, राइट डाउन द सेंटेंसेस हियर। बड़ा बड़ा, छत पर चढ़कर सारे पेड़, छत पर चढ़कर राम को
पेड़ बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दिया। ओके, सोच सोच, मेरी माँ मेरे घर न आने पर सोच सोच मीन्स बहुत ज़्यादा सोचना, सोच सोच कर परेशान थी। ऊंची ऊंची, बरगद पेड़ की ऊंची ऊंची डालियों पर चिड़िया ने घोंसला बनाया था। पेड़ की ऊंची ऊंची, ऊंची ऊंची मीन्स बहुत ऊंची, ऊंची ऊंची डालियों पर चिड़िया का घोंसला था, घोंसला था। खड़ी खड़ी, लोमड़ी खड़ी खड़ी अंगूर के गुच्छे को देखती रही। लोमड़ी खड़ी खड़ी अंगूर के गुच्छे को देखती रही। नेक्स्ट इज रेखा खींचकर मिलाइए और लिखिए। ड्रॉ लाइन्स, मैच एंड राइट। नाउ सी, अंगूरों का गुच्छा, ओके, अंगूर, अगेन नाउ दिस कैन बी अंगूर का गुच्छा या अंगूर की बेल। यस, अंगूर की एंड अंगूर की बेल। सो राइट डाउन अंगूर की बेल। लोमड़ी की टांगे, लोमड़ी की टांगे। एंड अंगूर के दाने, अंगूर के दाने, अंगूर के दाने। ओके, अंडरस्टूड? नाउ पढ़िए, समझिए और लिखिए। रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। नाउ रीड वेरी केयरफुली चिल्ड्रन। खट्टे अंगूर, कैसे अंगूर? खट्टे। ऊंची डाल, ऊंची डाल मीन्स द ब्रांच एट हाइट। कैसी डाल? ऊंची। कैसी डाल? ऊंची। सुंदर राजकुमारी, ब्यूटिफुल प्रिंसेस। विच टाइप ऑफ प्रिंसेस? ब्यूटिफुल मीन्स कैसी राजकुमारी? सुंदर, ब्यूटिफुल। हरा घोड़ा, ग्रीन हॉर्स। एंड हाउ वाज द हॉर्स? कैसा घोड़ा? हरा, ग्रीन। नन्हा खरगोश, लिटिल रैबिट। हाउ वाज द रैबिट? लिटिल, नन्हा। सो कैसा था खरगोश? नन्हा। आपने जो शब्द लिखे हैं वे विशेषता बताने वाले शब्द हैं। विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। नाउ चिल्ड्रन, द वर्ड्स यू हैव रिटन हियर, these are telling about the noun. Khatte angur means sour grapes. These are telling about the quality of the grapes. How are the grapes? They are sour. So these are known as, what are they known as? विशेषण, विशेषण। They are known as विशेषण। रंगीन वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। Join the colored letters and make new words. Now see, the word is sari and this is gagar. Now the colored word is sa and here the colored word is gar. So we form a new word, sagar. Okay? Now here the word is baja, next is badal. The colored words
are ba and dal. So it becomes badal. We form a new word. Here the words are pan and chalak. The colored words are pa and lak. So we join the words palak. Okay? Fine? So here we complete our chapter also. Children, stay tuned for the new video and keep learning. Learn the chapters again, learn the word meanings, go through the words which are there for dictation, and we'll meet soon with a new chapter. Till then, bye. Stay happy.